Good morning, dear students. Myself is Deepthi from DIPS Karolbagh, and in today's lecture, we are continue the reading of Geography, Chapter 9, Human Resources. Whereas in previous lecture, we have read about the introduction of this chapter, what is the meaning of human resources and why it is so important for us. And in today's lecture, we are going to read about the density of population. Density of population means the total number of people living in an country or in an region or in an area. The density of population is the ratio between the total population and the land area. The population density of a country or a specific region can be calculated by and dividing the total population of the country by the total geographical area of that country or region. The density of population or the number of people living in a per square kilometer help us to know the pressure of the land, pressure of the people on land. Now the question arises, what is the total um, geographical area? So total geographical area means the total area of a country. एक कंट्री का पूरा टोटल एरिया कितना आता है, कितने किलोमीटर्स में वो फैला, वो पूरा एक जोग्राफिकल एरिया हो जाता है. एंड देन द टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया आएगा of that region or area or a country, and then it will be divided and the उससे पॉपुलेशन निकल आएगी, एवरेज पॉपुलेशन निकल आएगी एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना रहता है. ठीक है, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? ये हेल्पफुल होता है हमारी स्टडीज़ के लिए कि डेवलपमेंट की स्टडी करनी होती है कि भी एक पॉपुलेशन लैंड पे कितना प्रेशर पड़ रहा है पीपल का. यहाँ पर प्रेशर ह्यूमन बीइंग के प्रेशर की बात नहीं आ रही, यहाँ पे प्रेशर आएगा कि एग्रीकल्चर पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, कि एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन कितनी इतनी प्रोडक्शन हो पा रही है कि भी सभी को फूड मिल सके उस पर्टिकुलर रीजन में. तो इसके बारे में पता लगता है. उसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि डेवलपमेंट का काम यहाँ पे कितना हो पा रहा है. ये सब कुछ मेजरमेंट इसी पे ही डिपेंड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है. द वर्ल्ड्स डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अबाउट 48% पर स्क्वायर किलोमीटर. वर्ल्ड की जो डेंसिटी की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड की जो ये है, पूरा वर्ल्ड की डेंसिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन की बात है तो 48% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में. यानी कि लेंथ में भी 1 किलोमीटर, ब्रेथ में भी 1 किलोमीटर, ऐसे में. तो इस पूरे स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 48 लोग रहते हैं. बट द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कम्प्लेक्स. वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स इन द to study the distribution as per the density of population. ये तो हम लोग की टोटल हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी बड़ी सेपरेटली है, मतलब कि अलग अलग है. हाँ, कहीं पर कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है. 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है. व्हाट आर दे? लेट अस स्टार्ट. One is a densely populated area, second is a sparsely populated area, and third is the moderate populated area. So as the word describe itself, that densely populated area is that area where the large number of people live in a place. So these areas are the fertile river valleys or industrial regions. Here the population, a large number of people live here because of the good agriculture production is there, number one. Number two, the good job opportunities are there, so people love to live in that places. The most crowded part of the world are South and Southeast Asia, Western Europe, and the Northeastern North America. These areas are rich in mineral natural resources. If you study closely, you will may notice the almost every country has pocket of high density. So जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई डेंसली एरिया है आपके इंडिया में आ जाता है. देन आपके यहाँ पे इस कंट्रीज़ में, इन और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में भी आपका बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आ जाता है. वाई? द हियर लैंड इज़ वेरी फर्टाइल. फिर देन मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं. ड्यू टू डैट पीपल माइनिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशंस भी हुई हुई है. ड्यू टू डैट पॉपुलेशन लिव इन दैट दीज एरियाज अलॉट. Second is sparsely populated areas are the hot desert or very cold polar regions, sandy and rocky desert and equatorial forest. ये एरियाज पे ही द पॉपुलेशन बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल कंडीशन.
हॉट डेजर्ट एरिया तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कोल्ड पोलर रीजन है तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, विच इज़ नॉट वेयर वी कैन नॉट सर्वाइव। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे इतनी डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि वहाँ पे सनलाइट नहीं आती, तो वहाँ पे भी नहीं हम रह पाते हैं। एंड वेयर एज रॉकी डेजर्ट की बात की जाए तो रॉकी डेजर्ट है, रॉकी है और डेजर्ट है, यानी कि यहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो पाती है, तो फिर वी कैन नॉट सर्वाइव देयर ऑल्सो। सो ऐसे एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। Due to that, we are not we people does not love to live there. So next is the moderate and populated area are deltas in of rivers, central part of the USA, tropical and temperate grasslands, and the part of Australia and South America. The moderate populated areas are not found as continuous regions. Most of the people have migrated in these area due to the favorable environment and economic activity. Moderate population यानी कि जहाँ ये ना ज़्यादा ना कम पॉपुलेशन होती है, और यहाँ पर इकोनॉमी, यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण पे, जहाँ पे थोड़ी सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। डेल्टा एरियाज में क्या होता है, डेल्टा एरियाज में इसका कि सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर किया जाता है, बट डेल्टास हर जगह तो नहीं होते ना, हर रिवर के डेल्टा इज़ नॉट एसेसिबल। सो सेंटर पार्ट ऑफ यूएसए इज़ नॉट सो, क्योंकि वो बहुत ही या तो बहुत ड्राई है या फिर बहुत ही रॉकी एरियाज हैं। सो दीज आर द, तो कुछ ना कुछ कारण है। और ये एक जगह पे ये नहीं है कि भी जैसे कि भी नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कीजिए कि तो पॉपुलेशन बिल्कुल सीधी ही है, प्लेन है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहीं पर बिल्कुल प्लेन है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सेपरेटली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है। It is noticed that the more people live in those countries where which are in the northern hemisphere than those in the southern hemisphere. About 60% of the world population is in the 10 countries, that is China, India, USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Russia, Bangladesh, Nigeria, and Japan. The total population of each one of them is more than 10 million. So ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहना पसंद करते हैं, देन सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके पीछे क्या रीज़न है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्लाइमेट थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे हैं, वेयर एज द सदर्न हेमिस्फीयर के। एंड इसके बाद में एक और चीज़ आती है कि वर्ल्ड के 10 कंट्रीज़ के बीच में 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड। वो 10 कंट्री कौन सी है, नंबर 1 पे तो चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, देन इट इज़ यूएसए, देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड जापान इज़ देयर। तो इन कंट्रीज़ में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। व्हाट आर द रीज़न, बिकॉज द फर्स्ट, या तो सॉइल बहुत फर्टाइल है इस एरिया की, या क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है जो कि लोगों के लिए रहने के लिए, या मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं इन एरियाज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाई है। So these are the few reasons behind the population density. So in next lecture we are going to read about the factor affecting the distribution of the population. Thank you very much. Have a nice day.